چنانچہ اگر ہم پرانے عہد نامہ جی یعنی توریت، جی زبور، جی صحائف انبیاء کو نہ پڑھیں جی تو ہم نئے عہد نامہ یعنی انجیل کو نہیں سمجھ سکتے۔ جی تو میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے عہد عتیق اور عہد جدید جی یعنی جو اولڈ کاوننٹ ہے جی اور نیو کاوننٹ جو ہے، جی ان دونوں عہدوں کا موازنہ کریں گے اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جی ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب اور اس کی 31 تا 34 آیات کو پڑھا ہے۔ جی خداوند کا بندہ یہاں فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ جی ہاللویا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلتیوں کے خط اس کے 4 باب میں ہم نے پڑھا، جی یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، جی کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ جی یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، جی مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ جی ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، جی اس لیے یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا کا جس سے غلام پیدا ہوتے ہیں، جی اور دوسرا ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، جی اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے۔ جی مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ جی تو میرے عزیزو، ابھی ہم نے عہد عتیق میں سے بھی اور عہد جدید میں سے بھی دونوں حوالہ جات جو پڑھے ہیں، یہ دونوں حوالہ جات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنا عہد باندھتا ہے، جی اور یرمیہ نبی نے پہلے سے ہی اپنے صحیفہ میں اس کی پیشگوئی کی جی کہ خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ نیا عہد باندھے گا۔ جی ان دونوں عہد ناموں کے مقاصد کیا تھے، جی یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرانا عہد نامہ میں جی اس کا کیا مقصد تھا، اور اس کے لیے غلطیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا 3واں باب اور اس کی 19 اور اسی طرح 23 سے 25 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ جی یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے، جی پس شریعت کیا رہی؟ جی وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی جی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جی جس سے وعدہ کیا گیا تھا، جی اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ ہاللویا۔ ایمان کے لانے سے پیشتر شریعت کے ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، جی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ ہاللویا۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، جی مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ جی میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ
शरीयत जो थी वो मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा उस्ताद बनी, जी और हम ईमान के सबब से रासबाज ठहरे, और जब ईमान आ चुका तो फिर हम उस्ताद के मतहत ना रहे। जी यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने पर वो शरीयत जिसके हम पाबंद थे, अब उससे वो पाबंदी छूट गई। जी इसी तरह हम इब्रानियों के खत के 7 बाब उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं। जी ये नया अहद है। जी हम देखेंगे कि ये नया अहद क्या है। जी खुदा का बंदा फरमाता है, हालेलुया क्योंकि शरीयत ने किस चीज को कामल नहीं किया, जी और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई। जी ये हैं तो मैंने तो ये पुराना अहद और इसी तरह ये जो नया अहद, खुदा का बंदा फरमाता है कि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया, जी बल्कि उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद जो रखी गई थी, जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं, और वो वसीला हमारा नजदीक खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया सो हमने ये देखा कि ये 2 अहदनामे जो हैं, पुराना अहदनामा इसका क्या मकसद था, और नया अहदनामा जो था, नया अहद जो खुदा ने दिया, इसका क्या मकसद था। जी पहला अहद मौकूफ हुआ और दूसरा अहद कायम हुआ। जी हम खुदावन के कलाम में से ये भी जानेंगे जी कि पहला अहद जो था वो कैसे मौकूफ हुआ और दूसरा अहद किस तरह कायम हुआ। जी इब्रानियों का मुसन्नफ अपने इब्रानियों के खत के 10वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में इब्रानियन यूं 10 फरमाता बाब है। 8 है 9 आयत। इब्रानियन 10 बाब 8 और 9 आयत। जी 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 ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तो तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया, जी और ना उनसे खुश हुआ, जी हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती हैं। जी और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया गर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरा कायम रहे। जी तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यहाँ फरमाता है उन कुर्बानियों के बारे में, उन नजरों के बारे में, उन सोख्तनी कुर्बानियों के बारे में, उन गुनाह की कुर्बानियों के बारे में कि जी। यहाँ लिखा है कि खुदा उसे पसंद नहीं करता था, खुदा उनसे खुश ना हुआ। जी हालांकि वो सारी की सारी कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती थी, जी लेकिन वो माकूफ हो गई और दूसरा अहद कायम हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। जी गर्ज वो कर रहा हूं, उनको लफ्ज बलफ्ज में पढ़ रहा हूं ताकि आप कलाम में से ये जान सकें कि किस तरह पुराना अहद जो है वो माकूफ हुआ है और नया अहद किस तरह कायम हुआ। जी दूसरा क्रंथियों 3 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक जी यहाँ खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है, जी लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, जी क्योंकि आज तक पुराने ऐदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है जी और वो मसीह में उठ जाता है। हालेलुया मगर आज तक जी जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है जी तो उनके दिल पर
पर्दा पड़ा रहता है, जी लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा जी तो वो पर्दा उठ जाएगा। जी खुदा का बंदा ये बातें तमाम यहूदियों को बता रहा है जो पुराने अहद के को उस शरीयत पर अमल करने वाले हैं, लेकिन नए अहद को सही तौर पर नहीं जान रहे। वो ये समझते हैं कि हमारी शरीयत पर अमल करना ही हमारे लिए जिंदगी है, इसलिए वो शरीयत को पूरा करना और शरीयत की पर जो है कायम रहने के लिए इस तालीम को जारी रखते हैं। जी लेकिन खुदा का बंदा करंथुस की कलीसिया को लिखता है कि उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने ऐदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। जी इसलिए कि अभी उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। जी और वो कहता है कि और वो मसीह में उठ जाता है, यानी जब वो मसीह को कबूल करेंगे तो वो पर्दा उठ जाएगा, जी। उनकी आंखों से वो पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। जी इसी तरह अबरानियों का मुसन्नफ अबरानियों 8 बाब और उसकी 6 आयत में जी इस तरह फरमाता है, जी मगर अब उसने इस कदर खिदमत पाई जी जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जी जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। जी सो दूसरा अहद जो कायम हुआ है हालेलुया। उसके बारे में अबरानियों का मुसन्नफ कहता है कि उसने इस कदर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा। और हमारा दरमियानी कौन ठहरा? हमारा मनज्जी खुदावंद यीशु मसीह हमारा दरमियानी ठहरा, और वही इस अहद का दरमियानी है, और यही बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। जी सो मेरे अजीजों, हमने ये जाना है कि पुराना अहद किस तरह माकूफ हुआ और दूसरा अहद यानी नया अहद किस तरह कायम हुआ। जी फिर हम देखते हैं कि पुराने अहद के माकूफ होने की वजह क्या है। जी पुराना अहद क्यों माकूफ हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं? जी इसकी पहली वजह हमारा दरमियानी है। जी अब्रानियों का खत 9 बाब 15 ता 24 आयत तक जब हम पढ़ते हैं जी तो इस बात की वजाहत हो जाती है, जी इसकी वजह मालूम हो जाती है जी। कि पुराना अहद क्यों माकूफ हुआ, जी यानी पुराना अहदनामा माकूफ होने की क्या वजह है। यहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर हमें इसका इल्म हो जाता है। जी यहाँ लिखा गया है, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, जी ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, जी बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास हासिल करें। जी क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित करना जरूर है। जी इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, जी और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। जी इसलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। जी चनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को जी शरीयत का हर हुक्म सुना चुका, जी तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़का जी और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। जी और इसी तरह उस खैमा और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक
खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। जी मेरे अजीजों, हमने कलाम के इस हिस्सा को पढ़ा कि पुराना अहद माकूफ होने की क्या वजह है। जी हमने यहाँ पढ़ा कि इसका सबसे बड़ी वजह हमारा दरमियानी है, जी और हमारा दरमियानी हमारा मनजी खुदावंद यसू अल मसीह है। जी उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है। जी खुदावंद यसू मसीह ने पहले अहद के जो कसूर थे उनकी माफी के लिए इस मौत को हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू गॉड। रबा शंद्रबा शीराबा खला रबा शिकल रबो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रबा शंद्रबा शीराबा खला रबा शिकल रबो। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Shira ba khala raba shikle rabo. Shira ba 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 ba. Raba Chandra bari boli raba. Bluetooth device is ready Shira ba to khala pair. raba shikle rabo. Raba ba 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 ba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. 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 Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus, hallelujah. राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Rabba Chandraba Riboli Rabba Kala Rabba Shikl Rabo. Rabba Baba 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 Baba. Shi Rabba Kala Rabba Shikl Rabo. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Riba Baba Baba Baba. Chandraba Shiraba Kalaraba Shikl Rabo. Thank you, Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Rabba The Chandraba, Bluetooth device is Rabba ready Chandraba, to Rabba pair. Baba 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 The Baba. Bluetooth device Shiraba Kalaraba is Shikl connected Rabo. successfully. Thank you, Jesus. Glory to God, Rabba Chandraba. Shiraba Kalaraba Shikl Rabo. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Rabba Chandraba. Shiraba Kalaraba Shikl Rabo. Glory to God. Glory to God. Glory to God. धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्रबा रिबोली रबा खला रबा शिकल रबो। रोबिना रबा खला रबा शिकल रबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा बाबा 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 बाबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मदद करने वाले परमेश्वर मददगार,
मदद करने वाले परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्रबा, ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्रबा रिबली रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रबा चंद्रबा, हालेलुया। रबा चंद्रबा रिबली रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। रबा चंद्रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्रबा रिबली रबा। The हालेलुया। Bluetooth device is ready to pair. थैंक यू जीसस। The हालेलुया। रबा Bluetooth चंद्रबा। device is connected successfully. ये विश्वास हमारी। जी मैं डायरेक्ट लगा दिया, वो इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जी अभी डायरेक्ट लगा दिया, कोई नहीं, कंप्लीट करो बात अपनी। नहीं मैं ये कह रहा था कि अगर लोग सुन नहीं रहे। नहीं, लोग सुन रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, मगर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये व्हाट्सएप पे अभी कॉल कटी गई है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर जितना भी रहता है ना, आप डायरेक्ट अपनी बात कंप्लीट कर लो। चले मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम जल्दी। तो हम इस बात पर पहुंचे थे कि पुराने अहद के मौकूफ होने की वजह क्या थी। जी। तो हमने जाना है कि इसकी बुनियादी वजह हमारा दरमियानी है, यानी हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो नए अहद का वो दरमियानी है, जिसने मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास हासिल करें। जी यानी उन लोगों के लिए जो बुलाए हुए हैं, उनको अब्दी मेरास देने के लिए जो वादा है, जो अहद किया है, वो है हमारा दरमियानी, हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसकी मौत के वसीला से जो उसने हमारी तमाम गुनाहों की से निजात दिलाई जी। और उसके मार खाने से हमने जो है निजात हासिल की है। जी। और यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है, क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित करना जरूर है। जी। यानी जब कोई शख्स वसीयत करता है तो वो वसीयत जो होती है वो उसके जिंदा Lord to होने God. पर वसीयत लोगों को नहीं बताई जाती। जी। उनके जो पीछे जितने भी Lord to लीगल God. होते हैं, कानूनी जितने वारस होते हैं, वो वारस उस Lord शख्स to के God. जिंदा होने तक उस मेरास का हिस्सा नहीं ले जी। सकते। जी। जो वसीयत की जाती है जी। वो मौत के बाद जो है उसकी मेरास हासिल की जा सकती है। जी। इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है। जी। और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजरा नहीं होता। जी। खुदा का बंदा यहाँ पौलुस बता रहा है कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी जो वसीयत जो पहली जो अहद है, जी। उसकी वसीयत जो है उसको हमारी मेरास के लिए जब मिली, जी। इसलिए कि पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। जी। पहला अहद जो था, मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया। जी। वो भी अहद जो था उसमें भी खून का होना बहुत जरूरी था। जी। इसलिए ये निशान के तौर पर ये बछड़ों का और बकरों का जो खून था उसको निशान के तौर पर दिया गया। जी। तो यहाँ पर और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया, और इसी तरह उस खेमा और इबादत की तमाम चीजों पर खून जी। फेंका, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। जी। और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। जी। तो यहाँ खून का बहाना बहुत जरूरी था। और इस नए अहद में जो हमारा दरमियानी था, हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु, जिसने अपना खून बहाकर ये मेरास हमको बख्शी। जी। फिर हम देखते हैं कि नजरें और कुर्बानियां बदल दी गई। जी। इब्रानियों 10 बाब उसकी 4 से 10 आयत तक जब हम पढ़ते हैं हाँ। तो यहाँ लिखा है कि ये पुराने अहद की जो कुर्बानियां हैं, जी। क्योंकि मुमकिन नहीं
کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. جی اور پھر اسی طرح وہ کہتا ہے 9 باب کی 9ویں آیت میں، عبرانیہ 9 باب اس کی 9 آیت میں، جی وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے. جی اس کے مطابق اسی ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی. جی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ہے وہ پرانے عہد کی قربانیاں. جی پرانے عہد کی قربانیاں بیلوں بکروں کا خون تھا، جی اور بیلوں اور بکروں کا خون اور یہ نظریں اور یہ قربانیاں جو گناہ کے لیے چڑھائی جاتی تھیں یہ انسان کو کامل نہیں کر سکتی تھیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا. ہاں یہ ممکن نہیں ہے. جی تو یہ ہے پرانے عہد کی قربانی. جی اب نئے عہد کی کیا قربانیاں ہیں؟ نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں 5 باب اس کی 5ویں آیت جو ہے، جی 10 باب اس کی 5ویں آیت، یہاں لکھا ہے اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا جی بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. جی پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. جی اور پھر عبرانیہ 9 باب اس کی 26 سے 28 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں جی تو یہاں پر 26ویں آیت میں لکھا ہے جی ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، جی مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ مٹا دے. جی موجودہ دور کی نئے عہد کی قربانی میں اور پرانے عہد کی قربانی میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے. جی خدا کا بندہ بتا رہا ہے کہ پرانے عہد میں وہ خون جو بہایا جاتا تھا بکروں کا اور بچڑوں کا وہ ایک نشان تھا. جی اور اصلی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنا اس لیے ایک ہی بار دکھ اٹھایا تاکہ بار بار دکھ نہ اٹھانا پڑے. بار بار جو ہے اس موت سے خداوند یسوع مسیح نے بار بار دکھ اٹھانا کو جو ہے وہ جو اس کی بجائے اس نے زمانوں کے آخر میں ایک ہی بار ظاہر ہو کر اپنے آپ کو قربان کرنے سے تمام گناہ مٹا دیے ہیں. جی یسوع کا خون جو ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے، جی ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے. جی کسی بچڑے کا، بکرے کا، بیلوں کا خون ہمارے گناہوں کو نہیں مٹا سکتا. جی اس لیے پرانے عہد کی قربانیاں جو تھیں وہ موقوف ہو گئیں اور نئے عہد کی قربانیوں کے لیے خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے ایک بار موت کے حوالے کر دیا اور اس کے خون سے ہم نئے دور میں نئے عہد میں جو اس نے باندھا تھا اس نے ہماری میراث کا انتظام کیا ہے. جی عبرانیہ 13 باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں جی خدا کا بندہ فرماتا ہے پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں جی خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. جی یہ ہے نئے عہد کی قربانیاں. جی ہونٹوں کی کا پھل حمد کی قربانی خدا کے نام پر لکھا ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں جی اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو. اس لیے خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. اب خدا جو جی ہونٹوں کا پھل خدا کا نام لو، اس کی مدح سرائی کرو، اس کی حمد و ثنا کرو اور حمد و سنا کر کے خدا کے سامنے جھک کر اس کا شکر ادا کر کے اس میراث کو جو اس نے بخشی ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کریں. اور یہی معقول جو ہے ہماری قربانی ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے. ہاللیلویہ. خدا کا بندہ پطرس کا پہلا خط اس کی 2 باب اور اس کی 5ویں آیت جی یہاں فرماتا ہے
तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, जी ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। जी खुदा का बंदा पतरस यहाँ फरमाता है कि अब जो कहनों का मुकद्दस फिरका बन गए हो, अब आपने रूहानी कुर्बानियां चढ़ानी है। जी। और वो रूहानी कुर्बानियां यीशु मसीह के वसीला से हैं, और जो रूहानी कुर्बानियां यीशु मसीह के वसीला से हैं वही खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। हालेलुया। फिर रोमियो के खत में उसके 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत में जी मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, पसाए भाइयों, जी मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। जी यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जी ये है वो कुर्बानी जो नए अहद की कुर्बानी है, जो खुदा चाहता है, जो हमसे पसंद करता है। जी तो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमने पुराने अहद को और नए अहद को उसका मुकाबल जो है तकाबली जायजा लिया है कि जी। पुराना जो अहद है वो मौकूफ हो गया है और नया अहद कायम हो गया है। ग्लोरी टू गॉड। क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हमने तफसील से जाना है। और वो नजरें और कुर्बानियां जो पुराने अहद की थी वो अब बदल दी गई हैं। अब नए अहद की कुर्बानियां जो हैं उससे खुदा खुश होता है। Lord to पुरानी God. कुर्बानी और नजरों से खुदा खुश नहीं होता। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि तू कुर्बानी नू नहीं जानदा, नहीं ते तेनू देंदा, तू चढ़ावियां तो यार अब खुश कदी न हुंदा। आमीन। सो वही बात आगे चलकर खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि ये कुर्बानी जो है वो कुर्बानी जो खुदा को पसंद है, उसे नजर करो, जी। जिंदा और पाक जो खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। सो हमने खुदा के कलाम में से जाना है। और मेरे अजीजों, जो बात हमें आज बात खास तौर पर कि कहानत तब्दील की जाती है, जी इब्रानियों 7 बाब उसकी 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जी वो कहानत अब जो कहानत पहले थी वो तब्दील की गई। जी और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है। जी ये बातें बड़े गौर तलब हैं जिसे सीखने की जरूरत है। हालेलुया। पुराना अहद कमजोर था। इब्रानियों 7 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है पुराना अहद कमजोर था। जी गर्द पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया है। इब्रानियों 7 बाब उसकी 18 आयत में खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है, ग्लोरी टू गॉड। यहाँ कहानत तब्दील हो गई है और पुराना अहद कमजोर था, उसको बयान किया गया है और पुराना अहद कामल नहीं बना सकता था। जी इब्रानियों 7 बाब उसकी 19वीं आयत में जी और 9 बाब उसकी 9 आयत में जी। अभी हमने इसको पढ़ा है। और 7 बाब की 19 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया ग्लोरी टू और गॉड। उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए पुराना अहद कामल नहीं बना सकता, नया अहद कामल बना सकता है जिसकी उम्मीद जो है रखी गई है और जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। थैंक यू जीसस। पुराना अहद नक्श वाला था। यहाँ पर भी इब्रानियों 8 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि अगर पहला अहद इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ग्लोरी टू गॉड। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने ये देखा है, ये जाना है कि कहानत तब्दील की गई। हमने ये जाना कि पुराना अहद कमजोर था। हमने ये जाना कि पुराना अहद जो है वो कामल नहीं बना सकता था। Thank और you, हमने जी। ये जाना कि पुराना अहद नक्श वाला था। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि पुराना अहद गुनाह दूर नहीं कर सकता। यस इब्रानियों 10 बाब उसकी पहली 4 आयत और फिर 11वीं आयत में भी 10 जी। बाब की 11वीं आयत और 10 बाब की पहली 4 आयत में इस तरह लिखा है
جی کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، Glory to کیونکہ God. جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہ کو دور کرے۔ یہاں ہاللویہ، پر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ یہ کیوں موقوف ہو گئی، پرانا عہد کیوں موقوف ہو گیا؟ جی۔ اس لیے کہ بیلوں کا بکروں کا خون گناہوں کو جو ہے وہ نہیں دھو سکتا۔ ہاللویہ، اور ہر ایک کاہن 10ویں باب کی 11ویں آیت میں، عبرانیوں 10 باب 11 آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ہر ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ جی تو میرے عزیزو، آج کا کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیا عہد جو ہے جو خدا نے باندھا ہے، اس نئے عہد کے ہم خادم ہیں، اس جی۔ نئے عہد کے ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ جی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حاصل کلام کیا ہے۔ حاصل کلام کے لیے ہمیں اگر رومیو 7 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو پڑھیں تو جی۔ ان ساری باتوں کے بارے میں جن کا جی۔ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے ہمیں حاصل کلام مل جاتا ہے۔ جی۔ خدا کا بندہ یہاں فرماتا ہے جی رومیو 7 باب اس کی پہلی 7 آیات، جی لکھا ہے اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، یہ بات جی۔ ان سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جی۔ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ جی۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ ہاللویہ، شوہر کے تھینک یو جیزس، جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، گلوری ٹو گاڈ، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ ہاللویہ، اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو جی۔ مردوں میں سے جلایا گیا، جی۔ تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں، گلوری ٹو لیکن گاڈ، جب جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ ہاللویہ، پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے؟ جی ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ جی مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ سو میرے جی۔ عزیزو، ہم نے خدا کے کلام کو جانا ہے کہ جو نیا عہد ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، Yes. اور نئے عہد کا ہمارا درمیانی ہمارا منجی خداوند یسوع یسوع مسیح مسیح ہے۔ ہے، میرے عزیزو، خداوند برکت آج دے۔ ہم نے پرانے اور نئے عہد کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ جی ہم نے سیکھا کہ عہد عتیق اکثر عہدوں پر جو ہے مشروط ہے، جی یعنی عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عہد بھی ہیں، اکثر ایسے عہد ہیں جو مشروط ہیں، جی۔ لیکن نیا عہد تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے باندھا گیا ہے۔ جی کسی خاص فعل یا محنت کا تقاضا نہیں کرتا، جی صرف ایمان لانے یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم خدا کی اس میراث کے حقدار بن جاتے ہیں جی جو بنائے عالم سے پیشتر
ईमानदारों के लिए तैयार की गई है। जी पुराना ऐहदनामा बनी इसराइल को खुदा की बरगजीदा कौम करार देता है। जी मेरे अजीजों, पुराना ऐहदनामा बनी इसराइल को खुदा की बरगजीदा कौम करार देता है, जी लेकिन नया अहद हर मसीही को खुदा का बेटा और बेटी करार देता है। आमीन। अहद अतीक जिस्मानी तहारत और मजहबी रसूमात पर जोर देता है, जबकि नया अहद दिल की तहारत का मुतालबा करता है, जो हालेलुया। यीशु मसीह के खून के सिवा और किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। जी तो मेरे अजीजों, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज जो कुछ हमने सीखा है, खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से मुझे, मेरे घराने और तमाम सुनने वालों को ढेरों बरकतें अता करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आमीन। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਰੈਵਰੈਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਨਿਸ਼ਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, WhatsApp ਦੇ ਜਰੀਏ, YouTube ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਂ फेसबुक के माध्यम से जो लोग वॉच कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष बरकत देनी, अपनी बड़ी दया कृपा रहम करना। अब्राहम, इसहाक, याकूब ਦੀਆਂ ਬਰਤਨਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਮੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਭਰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम में आमीन। सारे मिलकर द्वारबानी करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बनाई जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने सुरों को माफ करते हैं, तो ये हमारे सुरों में माफ कर। हमें जमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत ते शराकत इस खानदान इस मंडली नाल तमाम दुनिया भर के ईमानदार संत सेवक लोगों नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਨ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਆਮੀਨ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਵਰੈਂਡ ਦਾਨਿਸ਼ਮਾਲ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, Glory to God. Rabba Chandraba, Shi Rabba Khala Rabba Shikl Rabo. Thank you, Jesus. Rabba Chandraba Riboli Rabba. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Rabba Chandraba Riboli Rabba. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus.
Glory to God, glory to God. So good night. Anyway, बाद में जिसकी भी कॉल है वो बाद में कॉल कर लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दें। सो सबको जय मसीह की गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल हम फिर खुदा के चरणों में बैठेंगे। आज थोड़ा प्रोग्राम हमारा जो है इतना अच्छा नहीं हो सका, बीच बीच में हमारी वीडियो बार बार कट हो रही थी, लेकिन खुदावंद के शुक्रिया हैं जितनी देर भी चल गई है। हमारा मकसद है खुदा के चरणों में बैठना, उसकी शुक्र अदा करना। तो खुदा का शुक्रिया करते हैं। हमने कलाम भी सुना है और बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है सिस्टर जी का, तो खुदावंद के शुक्रिया हैं। अगर आपके पास सही आवाज़ नहीं पहुंची वीडियो के जरिए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्ड की है, तो वो ऑडियो जो है वो ऑडियो आप तक पहुंचाई जाएगी। सेंड कर देंगे मैसेज, ताकि आप खुदा का कलाम जो आज बोला गया है उस कलाम के द्वारा आप सब बरकत पा सकें। सच जो प्लीज़ हम्बली मेरी रिक्वेस्ट है, फिर एक बार जाने से पहले आप प्लीज़ कोई भी बहन भाई जब भी कोई कॉल करता है मैसेंजर पे, वो सारा सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। 2-3 लोगों ने मैसेंजर पे कॉल की है। एक तो वो श्याम सिंह, पता नहीं आई डोंट नो लेडी थी या मैन था, वो बार बार कहने के बावजूद भी बार बार ही फ़ोन करते रहे। फिर 1-2 बाद में कॉल मैसेंजर पे आ गई, जिससे वो सारा सिस्टम ख़राब हो गया। इंटरनेट के जो है सारा सेल चले गए, बार बार वीडियो बंद हो रही है। मुझे शो हो रहा है कि मैं लाइव में हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं ज्वाइंट, कोई भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, मगर फिर भी खुदा का शुक्र है कि सारी हमारी वीडियो को परमिशन ने कंप्लीट कर दिया है। मैं खुदावंद का शुक्रिया करता हूँ। खुदावंद बहुत बहुत आशीष से बरकत दें। जी हेलो 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 जी, जय मसीह की। जी जय मसीह जी। जी जय मसीह की। जी सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अपना नाम बताओ, कहाँ से बोल रहे हो? जी भाई साहब। आप कहाँ से बोलते हो? अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हो? हेलो जी अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हो? भाई साहब, पास्टर सुलेमान बात कर रहा हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। जी तो क्या कहना चाहते हो जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं? प्रोग्राम हमारा समाप्त हो गया है, तो लास्ट में कुछ कहना चाहते हो आप? भाई साहब, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले जी कि खुदा ने मुझे अच्छे खादिम से मिलवाया, बातचीत करवाई जी और आपकी वसीला से मेरी ज़रूरत को खुदा ने पूरा किया, मुहैया किया। जी खुदावंद आपको और ज्यादा बरकतों से, रहमतों से नवाजे और आपकी सारी कलीसिया को और ज्यादा बढ़ाए, आपकी खिदमत को और ज्यादा चिपकाए। जी मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। जी तो भाई साहब मेरे लिए भी इस दुआ कीजिएगा। मैं काफी दिनों से तबीयत खराब है जी और बच्चों की भी है साथ में मेरी, जी नज़ला, जुकाम, बुखार। जी खुदा बाप, खुदा तो बेटे। मैं बस ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे भी मौका देखें। जी जिस दिन भी आप चाहें आप वचन बोल सकते, कलाम बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं, आप लाइव पे बोल रहे हैं, सभी लोग आपकी बात सुन रहे हैं। जी सभी लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि मीटिंग हमारी ऑलरेडी समाप्त हो गई है। जी सर। प्यारे खुदावंद तेरा धन्यवाद करते तेरे खादम सलमान के लिए, जिनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह उनके बच्चों को, उनको आपके जोरावर जख्मी किल्ला वाले हाथों में सौंप देते। खुदावंद अपने खादम को अपने जख्मी किल्ला वाले हथ नाल छूना, हर तरह की खांसी, जुकाम और बुखार
यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। जो तमाम ज़रूरतें हैं यीशु मसीह के नाम में, वो तमाम सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। बड़ी दया कृपा रहम करना यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। ओके जैम सिद्धि, गॉड ब्लेस यू। हेलो आमीन। बरकत नवाजी, और जो लोग सुन रहे हैं आमीन। उन सबको भी खुदा बरकतों रहमतों से नवाजे। जी जी गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सुसान पास्टर सुलेमान जी जो लाहौर तो साना जुड़े सके, खुदावंद इनके साथ हो। खुदा पूरे तौर पर इनको चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि अच्छे होकर खुदा के काम कर सकें, खुदा के नाम को जलाल दे सकें। ग्लोरी टू गॉड। सो नाज़रीन, हमारी आज की इबादत समाप्त हो चुकी है। गो विद पीस, शांति से जाएं, खुशी से रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको हमेशा खुश रखे, शांति से रहें, खुशी से रहें और प्रभु के प्यार में, मोहब्बत में बने रहें। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की। सी यू टुमारो। आमीन।